Good morning, everyone. Although it is 6th of January today of the year 2025, but we all are going to meet very first time in the school premises after the new year began on 1st of January. So I wish each one of you and your family members very happy new year. Very nice, very nice. I know that it is a chilly winter. Sometime, the cool breeze is blowing around. You all have taken the protective gears and covers over your body to protect against this cold. And you must continue protecting yourself against such kind of cold weather because there are some seasonal infections which may take place. And in the same regard, I would like to advise you very strongly, please don't exchange and share and shake the things along with the other person, because this is contagious one which really can spread among others. So it's nothing like to feel bad about of not touching, not meeting, not shaking hands. Please feel yourself that you are really making others to protect themselves and to protect yourself also. That's very important. So take all these kind of due precautions regarding your health point of view. My worthy colleagues and dear students, the new year must bring lot of hopes, aspirations, and some kind of resolutions. I don't know, resolutions we generally take on 30th and 31st of December, and by the time 1 week goes over, the resolutions become little weak and it fades away. And once we are flying the kites, by then our resolutions also start flying up in the sky, and then we again wait for another first or Monday or something of that sort. Let me tell you very clearly, every day must be a day of resolution for us. If we have high hopes and purity of thoughts culminated into the actions, maybe step by step, the goals which you make up in your life, you definitely are going to achieve. But at the same time, along with the goals, hopes, positivity and purity, very important step of life, listen carefully, that is never give up attitude. तो ये बात थी, मैं कह रहा था कि हमारी जिंदगी में सारे रंग हो, हम जीवन में एक परिपूर्णता से परिपूर्ण हो, ये लीडरशिप की बड़ी पहचान होती है। और अब हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, डायनामिक पर्सनालिटी के धनी। डायनामिक चीज बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, नेशनल से इंटरनेशनल कल्चर तक जाना और इंटरनेशनल कल्चर में एक इस ग्लोबलाइजेशन की हवा में एजुकेशन को लेके निकलना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उन बुलंदियों को छूना, जहां गार्जियंस उन सपनों को लेकर आते हैं। इंटरनेशनल स्कूल चलाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी स्कूलें गली कुचली मिल जाती हैं, लेकिन वहां के लोगों की सोच वो नहीं है। इंटरनेशनल स्कूल चलाने के लिए बहुत बड़ा माइंड चाहिए, ब्रॉड माइंड, हर तरह से सोचने वाली बात। सत्येंद्र सर अभी हमारे बीच बता रहे थे कि गार्जियन क्या चाहता है हमसे, और गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे केवल राज्य की बात नहीं, देश के पटल पर नहीं, इंटरनेशनल की दुनिया में आगे बढ़ें और एक पहचान बनाएं। इतनी बड़ी सोच के साथ जो लीडरशिप देते हैं जीआईएस गुढ़ागौड़ जी को, वे हमारे बीच डूडी साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डूडी साहब का अपने खास एड्रेस के लिए। आपके बीच डूडी साहब। Thank you, Nikhil ji. Thank you very much. Very distinguished guest and dedicated educators. First of all, I wish each one of you and your families very happy New Year 2025. The speakers, those who came before me, have addressed different issues on different aspects in their own ways, and I listened each and every word. The special thing which I was very happy to know about is that it is the GPS and the GIS which really ultimately culminated this Guja education up into different other units. So the credit, the gratitude and the entire sacrifice of the team really proved and brought all of us to this great level. तो सबसे पहले तो मैं मेरी टीम GIS के लिए मेरी दिल की गहराइयों से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ
थैंकफुल फील करता हूं कि उन सब के जॉइंट एफर्ट्स, टीम वर्क से जीआईएस नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कारवा वहां से आगे बढ़ते बढ़ते और कई रूपों में हमारे सामने है। और भी आगे हमारे अच्छे अच्छे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए हम सब लोग बिल्कुल कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, अपनी प्लान्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बट मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने किस बात को सुना और कौन सी बात आपके दिल को छुई और वहां पर आपने क्या रिएक्शन दिया, वो आपको विजिबल है, दूसरे को नहीं है। क्या सोचा आपने उन चीजों के बारे में? चेयरमैन सर ने बहुत अच्छा विजन हमारे साथ में शेयर किया है। निखिल जी बीच में मॉडरेटर के तौर पर बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से बता करके अपने को चल रहे हैं। गुड़ा एजुकेशन हब के डायरेक्टर के सत्येंद्र साहब ने कई स्कूल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, चढ़ते उतरते पल के आने वाले समाज के, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स के, गार्जियंस के, टीचर्स के, सबके। इन सारी बातों को दिमाग में रख करके, मन मस्तिष्क में और दिलों में रख करके हमने क्या सोचा, आने वाला कल इस पर डिपेंड करेगा। इसमें कतई संदेह नहीं है कि आने वाला कल इस पर निर्भर करेगा कि इन सारी बातों के रेस्पॉन्सेज में आपके मन मस्तिष्क ने, आपके दिल ने क्या सोचा, क्या आपने अपने आप से कमिट किया, क्या आपने प्रॉमिस किया अपने आप से। कहने वाला नहीं, कहने के लिए यहां से बहुत अच्छी बातें कही जा सकती हैं। हर कोई कह सकता है, जितने लोग बैठे हैं हर कोई कह सकता है, और जोश में और जुनून में आकर के बहुत बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जा सकते हैं। बड़ा आसान काम है, उसको धरातल पर उतारना जो है वो भी आसान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो कई स्टेप से गुजरता है। हर एक स्टेप के ऊपर अपने आप को बरकरार बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक तरफ बात करते हैं 98, 99, 98.456 की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स की, आने वाला कल किस चीज की डिमांड कर रहा है। क्या हम रियली हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? बच्चों को ट्रेन हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन सी लिमिटेशंस हैं? क्या गार्जियन इन बातों में भरोसा करता है कि मेरा बच्चा पेटी बाजा बजाना सीखे, बास्केटबॉल खेलना सीखे, डांस करना सीखे, गाना गाना सीखे, मेरा बच्चा डिबेट में जाए? क्या बच्चों को भेजते हैं? बोर्ड क्लास के बच्चों को हम भेजते हैं? क्या गार्जियन भेजते हैं? क्यों नहीं भेजते? क्या कारण है? क्या उन स्कूल्स में जिनका नाम बताया, क्या वहां पर भी ये पाबंदी और प्रतिबंध है 10वीं और 12वीं के बच्चों को भेजने की? पता करिए, नहीं पता है तो गेट एसोसिएटेड योरसेल्फ विद दोज एलीट स्कूल प्रोफेशनल्स, गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई देयर इज नो बैरियर अपॉन देम, व्हाई देयर इज अ बैरियर विद अस। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। उनको कौन अवेयर करेगा? कैसे अवेयर करेंगे हम? पेरेंटल ओरिएंटेशन। हमारा सबसे बड़ा पार्टनर पेरेंट्स है, सबसे बड़ा पार्टनर हमारा पेरेंट्स है। पेरेंट्स तक हमारी पहुंच कैसे हो? घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। रोहतास टूटी कितने भाषण देते, सत्येंद्र जी और संपत जी और लांबा जी और भाटी साहब कितने भी बोलते, रोज ही बोलते रहते, कौन सुनता है? ऐसे गार्जियन भी ऐसे ही सुनते हैं। एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। जिन स्कूल्स का इन्होंने नाम लिया है और आज प्रेजेंट में उनकी क्या है, के सत्येंद्र साहब ने बहुत कड़वी सच्ची बात कही है। अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। आप गुड़ा एजुकेशन हब के लिए मैं कह रहा हूं काम मत कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, अपने आप को देखिए। आर यू एबल टू स्पीक पब्लिकली? आर यू एबल टू compete with the teachers, those who are from those IPS schools and those elite schools? Do you refer the latest pedagogical approaches? What is happening around? What are we? We are educators. हम जो पढ़ाते हैं वो गूगल पर भी है,
वो बुक्स में भी है, वो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पर, सब आ रहा है। फिर स्कूल्स की जरूरत क्या है? We need to have face-to-face contact. We should be role model for the students. We should be the role model for the students. अभी चेयरमैन सर ने बहुत सही बात कही है, अभी तो शुरुआत हुई है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये केवल फाउंडेशन है, उसमें भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर मसाले के अंदर सीमेंट कम डली हुई है, वहां हमें सीमेंट डालनी है। फंक्शन है वर्क, ड्यूटी, काम, एक्शन। कौन सा एक्शन? अपने आप के अंदर सबको झांक करके देखने की जरूरत है। मैंने बिल्कुल कृतज्ञता जाहिर करी है, and I am very indebted for all the employees, all the staff members, not only of GIS, even of other schools. Does not mean that we are complete now. We need to start doing something more for our own self. आप बच्चों को वो सिखाइए जो समय की जरूरत है। 1-to-1 गार्जियंस को कन्विंस करने की ट्राई कीजिए। एक FLN का नाम आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे। कितने लोगों ने FLN का नाम सुना? जरा हाथ खड़ा करें। मैं क्वेश्चन किसी को नहीं पूछूंगा। FLN हाथ खड़ा कीजिए, मैं देखता हूं कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं। FLN NEP 2020 के 1000 वर्कशॉप अटेंड ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, मात्र कुछ चंद हाथ खड़े, हेड्स डाउन। FLN होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक बच्चा 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, 8 साल से स्कूल में पढ़ता है, उसको एक स्कूल का नाम इंग्लिश में नहीं लिखना आता है। उस बच्चे को सिंपल कैलकुलेशन और काउंटिंग नहीं आती है। उसको कहते हैं बाजार से आधी किलो गुड़ लाना बेटा, पाव चीनी ला रही है, 3 किलो नमक लेकर के आना है, और रास्ते में जाते जाते भूल जाता है। उसको बोला जाता है 13 रुपए किलो है तो 300 ग्राम का कितना हुआ? 3 दिन में नहीं बता पाएगा वो कितना हुआ, और उसके मैथ्स में 100 से 100 आ रहे हैं। दैट इज नोन एज फाउंडेशनल न्यूमरेसी। वी मस्ट टीच देम द स्किल्स, and unless we teach them practical, I really tell there is no use of such education. My dear friends educators, with the folded hands, I request and appeal each one of you to please update first your approach of learning to the students. Otherwise, in the long run, we really cannot be within the race of competitions. हमें वो अप्रोच सबको अपनाने की जरूरत है। हमारे बच्चों में वो स्किल्स देने की जरूरत है, वो सब सिखाने की जरूरत है। पिछले साल 2024 में मैं और चेयरमैन सर हिमाचल में गए थे, जहां पर बहुत सारी बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन के जो मेंबर स्कूल्स थे, वहां के एजुकेटर्स आए थे। वो स्कूल्स हमने विजिट भी करी है, 3-4 वहां पर देखी भी हैं। सर मुझे बार बार एक ही चीज कह रहे थे, क्या है क्यों बंदे क्या है, देख बिस्तर कहेंगे, कपड़े देख, मैस कहेंगे, टेबल कहेंगे, चेयर कहेंगे, क्या करनी है? 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया लाइन लाग रही है, फिर भी एडमिशन खुले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ऐसा क्या है? हमने एसी फेसी सब लगा रखे, कूलर, बिल्डिंग सारे एकदम मोस्ट मॉडर्न फर्नीचर्स, बड़ा आउटलुक शानदार तरीके, चमकते दमकते, और वहां कुछ नहीं है, पुराने फर्नीचर है, पुरानी स्कूल है, और वहां सीट नहीं मिलती है। क्या है वहां पर? सबसे बड़ा बात सोचने की यही है, उन्होंने एक लेगेसी बिल्डअप की है, उन्होंने एक कल्चर बिल्डअप की है। हमारे बहुत सारे मेरे टीचर साथी जाते हैं बहुत सारे इवेंट्स के अंदर, वहां से आते हैं, मैं पूछता हूँ कैसा लगा, क्या 2 चीज आपको अच्छी लगी वहां पर? 2 बच्चों की बताओ, 2 टीचर की बताओ, 2 स्कूल की बताओ, 2 स्टाफ की बताओ। वो बताते हैं कि सर ये चीज देखी। क्या देखी? सर वहां के स्टाफ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, सर उनका प्लेजिंग पर्सनालिटी थी, दे वर वेरी हैप्पी, चीयरफुल एंड वेलकमिंग ऑल ऑफ अस। माथे में 5 सलवटें पड़ी, बार बार घड़ी में देख रहे हैं कब छोड़ेगा माइक, कब लंच मिलेगा। नहीं होता वहां कुछ नहीं। अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, मन के अंदर एक गहरी लालसा होनी चाहिए जानने की कि मैं साइंस सिंपोजियम करवाऊं, मैं यहाँ पर MUN करवाऊं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस की एक्टिविटी यहाँ पर करवाऊं, मैं मॉक पार्लियामेंट करवाऊं, मैं संस्कृत श्लोक कंपटीशन करवाऊं, मैं कुछ इंटर हाउस या इंटर स्टाफ कोई ना कोई इवेंट करवाऊं और वहां पर भाग लें। हम पूछे टीचर्स टॉक में, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू गिव द टॉक इन द असेंबली? लिस्ट के अंदर रख देते हैं, जो इच्छुक है अपने नाम के आगे डेट और साइन लिख के लिख दें, नील लिख करके आ जाते हैं। सोचने की बात है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट और अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने अंदर झांक करके देखिए। हमें बहुत बदलाव की जरूरत है। हो सकता है मेरी कुछ बातों से मेरे कुछ साथी सहमत नहीं हो, लेकिन मैं बात उन साथियों की और किसी एक संस्था की नहीं कर रहा हूं, मैं बात उस राष्ट्र की कर रहा हूं, उस देश की कर रहा हूं जहां के भावी नागरिकों में
हमारे बच्चे उस रेस में आगे कैसे निकल सकते हैं। असली मान सम्मान हमें तभी मिलेगा, वरना कोई मान सम्मान मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं, हमारी कमाई वो है, हमारी असली मेहनत वो है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा पूर्ण अनुशासन में रहता है, उसमें अच्छी वैल्यू एजुकेशन है और उसमें अच्छी हैबिट्स है, उसने गूगल ज्ञान और टेक्स्ट बुक ज्ञान के अलावा कुछ ज्ञान अर्जित किया है, अपनी आंखों से आपको और हमको उसने कुछ अच्छा करते हुए देखा है, उसको वो फॉलो करेगा और सीखेगा। हम क्या कर रहे हैं वो देखता है, वो जानता है। हमारे मन में भय हो सकता है कि हमारे बारे में बच्चा नहीं जानता, बच्चा हमारे बारे में सब जानता है। कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके पास बैठता है, किसके पास उठता है, कौन टाइम पर क्लास में आता है, कौन लेट आता है, कौन कॉपी क्लास के अंदर चेक करता है, कौन क्लास के बाहर चेक करता है, कौन बिना देखे टिक मार के मार्क्स दे देता है, सब जानता है बच्चा। बिलीव मी, आज का बच्चा हमसे काफी आगे स्मार्ट है, उसकी मजबूरी है। क्यों? उसने आवाज उठाई नहीं, वो टारगेट हो नहीं गया। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारे बराबर के नहीं हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट हैं। जब तक सच्ची ईमानदारी से, दिल से और दिमाग से समर्पित होकर के पूरे सिस्टम को हम रेस्पेक्ट करते हुए काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि हम में ऐसे विजनरीज बैठे हुए हैं, ऐसे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं लीडरशिप के अंदर, जो उसको डगमगाने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा, इस बात को गहराई से मनन चिंतन करना, आत्ममंथन करना कि 2025 में हमें वो चीजें अपने आप में अपडेट करनी है जिनको देखने मात्र से बच्चा आगे बढ़ सके। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सोचिए जरा इस बात को। हमारे जीएस में हम एक यूनिक इवेंट करवाते हैं, 5वीं बार हो गई थी, इंटर स्कूल इंग्लिश एक्सटेम्पोरेरी स्पीच कंपटीशन, जहां पर बच्चे को जाने के बाद में टॉपिक मिलता है बाउल में लॉटरी सिस्टम से कि मुझे किस पर बोलना है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, हम में से कितने लोग एग्री हैं जिनको ये कहा जाए कि आपको भीलवाड़ा जाना है, बीकानेर जाना है, प्रतापगढ़ जाना है, कोटपुतली जाना है, जयपुर जाना है, वहां जाने के बाद बाउल से एक शीट निकाल करके टॉपिक मिलेगा, उस पर बोलना है। हाउ मेनी ऑफ अस विल बिकम रेडी? नहीं बनते रेडी, नहीं होते हम रेडी। और फिर वो बच्चा कोशिश करता है और वो नहीं बोल पाता है, तो हम किस दृष्टिकोण से उसकी तरफ देखते हैं? ऑलवेज मोटिवेट। जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, जो हिम्मत करता है, जो सामने आता है, उसको सपोर्ट कीजिए, तब आप एक सच्चे इंसान है। करेगा जरूर, आज नहीं तो कल। आपके भरोसे नहीं कर रहा, वो अपने दम के भरोसे कर रहा है, उसको विश्वास है, उसके पास विजन है, उसके पास सोच है, उसके पास प्लान है। वो गिरेगा, आज गिरेगा, कल उठेगा, परसों फिर गिरेगा, नरसों फिर उठेगा, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा कि मुझे उस गिरते वक्त में सहारा किसने दिया था, और मुझे किस आदमी ने नीचा दिखाया था, किस आदमी ने मुझे डिमोटिवेट किया था। जो व्यक्ति सफल है उसको जरूरत नहीं है हमारी, उसको और ऊंचे लेवल के सफल बनाने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। इसलिए हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। सर ने सही कहा, 2006 में जब स्टार्ट किया था तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। 2011 में जब जीएस बनी थी तब भी लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा। मैं कह रहा हूँ जीपीएस बनी तब भी लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा। बाधाएं कहाँ नहीं आती हैं, एक से एक बाधाएं यहाँ पर भी आई हैं और जीवन में आती रहेंगे। बाधा आनी चाहिए क्योंकि वो अपने को मजबूत बनाती है। अगर बाधा नहीं आएगी तो हम मजबूत नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते जीवन में। आप में से भी कईयों को बाधा हो रही होगी, मेरी बोलने से, मेरी बात से, मेरी किसी कंटेंट से कईयों को बाधा हो रही होगी। क्या क्या भाषण दे रहे हो तुम, छोटा ना रोटी खाऊंगा टेम हो रही होगी, मान दो वही गढ़ में टेम पास जयराम जी ठहरा को तो बड़ी और गड्ढे चले जाऊंगा, हो रही होगी बाधा कहीं। बट माई रेस्पेक्टेड कलीग्स एंड एजुकेटर्स, द काइंड ऑफ मिशन जो कि बराला साहब ने बहुत शान से कहा था कि अपने बच्चे को अपने कलेजे से नीचे निकाल करके 8 घंटे के लिए हमारे भरोसे जो लोग छोड़ते हैं, जो माँ बाप छोड़ते हैं, वो माँ बाप हमसे बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं और वो हमारी रोजी रोटी है, उसके साथ हमें दगा नहीं करना चाहिए। हमें उसको बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस घड़ी में टाइम देखा और खत्म। सर ने बताया टाइम के बारे में, पंक्चुअलिटी के बारे में, कितनी अच्छी बात है। कितने लोग हमारे में से जो पंक्चुअल अपनी लाइफ में, खुद से पूछो ना। हर बार अगर किसी को टोकना बोलना ये पड़े तो फिर बच्चों को क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा स्थिति होनी चाहिए कि हमारे पास में एक शानदार प्लान बने, अच्छी चीजें बने, हम अपने बच्चों में वो स्किल्स डेवलप करें जो आने वाले कल में उन बच्चों को जरूरत होगी, उन बच्चों को वो एम्प्लॉयबल बनाएंगे। एनडीए की बात कर रहे थे सर, सीडीएस की बात कर रहे थे, रिटन एग्जाम होती है, टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है, एफकेट भी होती है, एसएसबी भी होती है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। डिफेंस में, डिफेंस मींस आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, तीनों में ऑफिसर बनने के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए
ये बहुत सारे चैनल्स होते हैं। रिटन एग्जाम बच्चा पास कर देता है, बहुत अच्छा हार्डवर्क और सब्जेक्ट में उसकी कमांड होती है तो, लेकिन 5 डेज एसएसबी के अंदर पहले दिन स्क्रीन आउट हो जाता है। फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होते हैं 70%, और उसके बाद 5 डेज तक एसएसबी होती है। उसके अंदर बच्चे के हर एस्पेक्ट को असेस किया जाता है। इंटेलिजेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं देखा जाता। वहां देखा जाता है आपकी पर्सनालिटी के वो एस्पेक्ट, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप में इनिशिएटिव स्किल्स कितनी है, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप में टीम स्पिरिट कितनी अच्छी है, इंस्टेंट प्लानिंग कैसी है, क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं कि नहीं। एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिए जाते हैं। आपको डेंजर जोन दी जाती है, क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि अपनी जबान से प्लान बहुत अच्छी बना लेते हैं, जब सामने गड्ढा दिखता है, पार करने की नौबत आती है तो पीछे हट जाता है, समझ में आ जाता है फालतू की बाबूजी दिखा रहा है। उसको पूछा जाता है कि सपोज यू हैपन टू सी अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, व्हाट विल यू डू? सर आई विल फाइट विद द टाइगर, क्योंकि फौज में अफसर बनना भाई, बोलना पड़ेगा। और जब पता चल रहा है कि उसके सामने एक खिलौने वाला किसी प्रकार का कोई सांप डाल दिया जाता है, वो डालते कर ये करके, तो उसको पता चल जाता है कि बकवास कर रहा है, कुछ नहीं। वी नीड टू डेवलप दोज स्किल्स, क्योंकि वो टेस्ट की जाती है। आपके आईआईएम में, कैट में किसी को भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, प्लानिंग होती है। वहां पर आपका माल मणिदा जितना आपके दिमाग और दिल के अंदर बसा हुआ है सब सामने आ जाता है। हमें बच्चों को ऐसी सिचुएशन देकर के टेस्टिंग करनी चाहिए। बच्चों को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की कैपेसिटी देने के लिए हमें इक्विप करना पड़ेगा। बच्चे बदमाशी, शैतानी, शरारतें, हरकतें करेंगे, हमने आपने नहीं करी, क्या आप भी करते हैं कहीं तो हमारे में से, तो बच्चे अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कोई बात नहीं, उनको पैसिफाई कीजिए, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखने की, रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए, बट उनको वो सारी चीजें सिखाइए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। आप पूछ के देंगे, कई बच्चे से पूछते हैं कि बेटा वो होमवर्क कर लिया है? पार्डन सर नहीं बोलता बच्चा, क्योंकि हम नहीं बोलते। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा करेंगे। किसी को आप कोई बात बोल रहे हो, फोन पर सुन नहीं रहा है, वो आपको जवाब दे रहा है तो बच्चा भी ऐ ही बोलेगा। We must have all these kind of manners and etiquettes of greeting the people, giving smile to the people, talking to them, greeting them, supporting them, having very finest opinion regarding all such kind of supports as and when it is needed to all our colleagues. Let us build up an environment. हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हमें टॉक्सिसिटी से दूर रखना है। Try to give them. सो मेरे साथियों, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो। अगर किसी को मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो जिसको लग रहा है कि मुझे कहा जा रहा है, तो जरूर उसको सोचना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूंगा माफ करना, मैं तो कहता हूं जरूर उसको सोचना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि मुझे कह रहा है, बिल्कुल कह रहा हूं। खुले रहो, मस्त रहो, काम करो, आराम से करो, मस्ती से काम करो। आप अपने मालिक खुद हैं, आपका मालिक ऊपर वाला, तीसरा कोई मालिक नहीं है कहीं पर किसी का। लेकिन बात करी, 2 मिनट और ले लूंगा मैं। एल्यूमिनाइज की बात करी, किसी स्कूल का एल्यूमिनाई क्या होता है? मैंने एक दिन स्टेटस लगाया था। क्यों लगाया था? बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी का मैं एम्प्लॉय रहा हुआ, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी का। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह जो आज मिजोरम के गवर्नर हैं, बड़े गर्व की बात है। लेकिन वीके सिंह साहब मेरे से बहुत बड़े हैं। जब वो स्कूल से पढ़ करके निकल गए थे, when he was in uniform, I was not in liquid form. I was nowhere existing. बट फिर भी मुझे गर्व है। क्यों? हम एक ऐसी लेगेसी से अपने आप को अटैच कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये बिट्स में पढ़ाता है। काय का बिट्स में पढ़ाता है? क्या है बिट्स? बिट्स अलग है, बीटी अलग है, बीटी के अंडर में 7 इंस्टीट्यूशंस है, बीपीएस अलग है, बिरला स्कूल अलग है, बिरला शिशु विहार अलग है, बिरला बालिका पीठ अलग, विद्यापीठ अलग है। लेकिन नहीं पता रहता बहुत सारी बातों का। वहां पर क्या है? 3 दिन 4 दिन घूम के आगे, 2 दिन प्रैक्टिकल लेकर के आगे, 10 दिन कॉपी चेक करके आगे पता चलता है कि नहीं चलता। लोगों का सालों साल पता नहीं चलता है। आप सिस्टम के अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं सीखेंगे। मेरे साथियों, 2 चीजें सुधार लो, हैबिट्स और सिस्टम। हैबिट्स और सिस्टम सुधार लो लाइफ में, आपको जिंदगी के अंदर कहीं कोई बात नहीं खानी पड़ेगी। आप चाहे टीचर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, कुछ भी है, उसको सुधार लेंगे, आपके अंदर की शक्ति आपके अंदर मजबूत हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि साल 2025 में जो बातें मेरे से पहले के वक्ताओं ने कही हैं, जो मैंने कही हैं, मेरे से बात मानने वालों ने कही हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एक दूसरे से देखते और सुनते रहते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीवी पर, बुक्स में, नेट पर, कहीं पर भी, पिक देम अप। आप उनको उठाइए,
और उसमें से मैक्सिमम अपने आप के अंदर डालने की कोशिश करके शेयर कीजिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए, इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर, वकील और बहुत बड़े लॉयर वगैरह, नेता वगैरह बना दो। मैं कहता हूँ समोसा बेचने वाला भी बढ़िया करो। किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है, क्या बात कर रहे हो, कुकिंग के बहुत सारे स्कोप हैं। नीम का दाना में भांजी समोसे बेचता है, इतनी लंबी दुकान लगती है, 2 घंटे खोलता है और 2 घंटे में 10,000 रुपये छापता है। देख लो कितने हो गए, 3 लाख रुपए महीने के, 2 घंटे में कमाता अगला। और जाके देख लेना, लोकेशन पता होगी पोस्ट ऑफिस के सामने से, नीम का थाना वालों को तो बहुत ज्यादा पता होगी। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी चीज की इतनी शानदार स्किल्स है कि वो वास्तव में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारा क्षेत्र तो ऐसा है कि जहाँ बच्चे हमारा गुणगान जगह जगह करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि 2025 का ये वर्ष हम सबके लिए, गुड एजुकेशन आपके सभी साथियों के लिए बहुत शानदार वर्ष रहेगा। हम सब मिलजुल करके बहुत अच्छा करेंगे। सतबीर जी का सपना कोटपुतली का जो जमीन देखने वाला वो जल्दी सच होगा, क्योंकि चेयरमैन सर जो हैं उनको ताल ठोकने में देर नहीं लगती है, क्योंकि कोई 5, 10, 20 करोड़ के लिए तो सोचने वाला आदमी सोचता है, इनको तो सैकड़ों करोड़ के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी शानदार टीम जब इनके साथ है तो निश्चित तौर पर यह सपना सच होगा। मेरी एक बार आप सभी को और आपके परिवार के सब सदस्यों को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।